और कभी कभी मुझे लगता है शायद हम इस पॉडकास्ट से गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचा सके यार, एंटरप्रेन्योर हमेशा बेईमान नहीं होता। Today we have somebody no short of a trailblazer with us. 18 years of experience, handling over 11 businesses, a living example of someone who's redefining office spaces and how office spaces need to be dreamt, designed and dealt with not only in India now but internationally. That's Mr. Anuj Saxena for you. तो मेरे आए थे 29 पहले और फिर आए 19 Three में। री में। Okay. फेकनेस भी एक बहुत बड़ी आर्ट है और ऐसा फेक करेंगे आपको पता नहीं चलेगा फेक रहा है। पहला कस्टमर हमें केवल हमारे पैशन में मिला और बहुत सारे कस्टमर हमारे केवल पैशन में मिले हमको, मतलब ये और ये बहुत बड़े बड़े नाम है दुनिया के, फॉर्च्यून कंपनी। और उन्होंने बोला कि अनुज वी प्रॉमिस यू दैट विल नॉट गो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, यू शुड बी देयर एट होम बट यू आर देयर इन ऑफिस फॉर 24 आवर्स जस्ट एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग गोज वेल। तो इंटेंट प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है स्किल प्रॉब्लम है। मैंने यार स्किल प्रॉब्लम है, इंटेंट प्रॉब्लम नहीं है हमारी। आई मीन वे सेटल लॉट ऑफ थिंग्स एंड मुझे आज भी याद है कि कुछ 200 लोग हमारा ऑफिस पूरा तोड़ने को रेडी थे। इंटेग्रिटी इज अ वेरी बिग गैप in real estate industry. Timeline is a very big gap in real estate industry. Great product is a very big gap. Yeah, let me just give you a small introduction who we have with us today. 18 years of experience, handling over 11 businesses and over 2 million square feet of jaw-dropping designs. This man, I think so. I think so. It's like he's a living example of someone who's redefining office spaces and how office spaces need to be dreamt, designed, and dealt with not only in India now, but internationally. Yeah. We have with us today Mr. Anuj Saxena, Thank you. co-founder and overall the creative head at Scooter, a premium office space solution providing company that manifests, pioneers, and makes interesting creative spaces with respect to offices happen. Yeah. Yeah, Thank that's you. Mr. Anuj Saxena for you. Big introduction. Yeah. Yeah, so in short, I think so. The conversation that I've had and the little bit that I've got to know Anuj over our calls, one thing that defines Anuj is he's a creative doer. He makes things happen and he makes ideas happen. Yeah. So today this talk is all about getting to know Anuj and what ticks for him. How does he make sure that you could be more of a creative doer? And let's see if we get to know what's his secret sauce. I will. There's no secret sauce to it. Yeah, Anuj, so let's start this. Okay, two things. First, three small questions. Yeah. Okay, let's take it as take this as an elevator pitch. Yeah. Can you tell us who you are, what you do, and 5 fun facts about yourself? All, I think so, under a minute to thoda sa will be challenging too much, but in under 1 or 2 minutes. Yeah. Yeah. So it's been 18 years in the business. You have already told मैं क्या करता हूँ. So 18 years, हमने 3 दोस्तों ने we have started, me, Puneet and Ankit. We 3 have started after college. I was in a job for 3 months, good 3 months, and they did not do a job. Okay. And then we decided, so it's been 18 years into business, 10 failed startups, and then this 11th, which we did not wanted to do, and became a successful company now. Yes, we have been able to get a successful brand on ground, or we do office spaces. That's our core. Crazy office spaces. That's our core. Okay. And 5 fun facts about me is that I just love smiling. Okay, And that's I'm nice. always happy. I play sports. I eat less. I'm always positive. I always look this world to be a magical world where I'm looking, and I'm always very grateful to everything, every moment of my life, which I live up to that level where I'm absolutely. It's amazing to live in this life, and I'm very blessed to have this. Yeah. Over the years, ये zen mode आया है. हाँ, बहुत सालों में. Over the years, 18 साल के बाद तो इतना zen mode आ ही जाता है. But you know, looking back, Yeah. how was it? How have you progressed from who you used to be 18 Yeah. years ago plus what years? So you know this progression कि अब मैं बम फटने नहीं देता हूँ. ये तो तो शुरू के 10 साल तो बहुत स्ट्रगलिंग थे, मतलब वेरी वेरी चैलेंजिंग, और जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो भी बहुत चैलेंजिंग था. ये सही कह रहे हैं आपकी, लास्ट के 10 साल में रियलाइजेशन हुआ यार दैट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया टू वर्क लाइक दिस, राइट. तो बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम में मुझे. Okay. और डॉक्टर ने मुझे बोला कि और मैं कॉल सेंटर चलाता था उस टाइम पे यार, 700-800 लोग,
और कुछ बहुत बड़े टीम साइज था, एंड वो टाइम जॉब्स के लिए हम लोग वो बेचते थे कुछ, तो वहाँ हमेशा कुछ मिस सेलिंग हो जाती थी, गड़बड़ हो जाता था, क्लाइंट नेवर यूज टू पे अस एंड वी वर अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस, और बहुत बुरी हालत हो जाती थी उस समय पे, जाओ नहीं पीपल करेंगे। नेवर यूज टू लव अस, राइट. सो एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे वेयर आई वॉज, सर में दर्द रहता था, तो मैं डॉक्टर के पास गया, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ योर एज, यू आर ओनली 30 पे यू कांट हैव अ बीपी प्रॉब्लम, राइट, यू नो व्हाट इज बीपी. मैंने बोला नहीं, आई डोंट नो. तो बोले डोंट गेट इनटू इट. दैट वाज द हिट पॉइंट वेयर आई रियलाइज दैट इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया एंड आई हैव टू चेंज. एंड देन नेक्स्ट 10 years was absolutely चेंज, 360 डिग्री टर्न. अभी कितना भी कुछ भी हो जाए, आप मुझे नहीं हिला सकते, आप मुझे हिला ही नहीं सकते. मतलब दैट्स माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट कुछ भी हिलेगा मैं नहीं हिलूंगा, और कुछ भी हो जाएगा, इट्स सिचुएशन है, हैंडल कर लेंगे. लाइक डेथ में सिचुएशन में हैंडल करते हैं, बर्थ में भी हैंडल करते हैं, कस्टमर जब खुश होता है तो भी तो हैंडल करते हैं. Yeah. तो अगर फेलियर है तो हैंडल करेंगे. और अगर हम 2 million स्क्वायर फीट बना चुके हैं, कभी कभी फेल होता है, अगला 2 million भी बना देंगे. सो व्हाट इज बिग डील अबाउट इट, आई मीन व्हाट इज बिग डील. But you can't say this to the customer. What is the big deal? Why you're shouting? But internal, so we can put a balance to the people. That is why people stick to me, to the company, to the organization, because we've been trying to get this loud and clear. Ki don't worry about it, right? Don't panic. It's not worth it. So it's not worth it. शुरू से शुरू करते हैं. Like, let us know a little bit more about you. Where are you from? What's your I'm from- upbringing? Just a little bit about your schooling. It'll just help us understand, what has made you what you are today. If I was very candid. I'm very candid, and my wife always tells me, don't be so candid about you. I have been a big failure at my school level also. I failed in 10th. Then I shifted my school to 11th. Then I again failed in 11th. Then I shifted to 12th to another school. Okay. And I still remember. I mean, I think ये story मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी वाइफ को कि यार, I think it will inspire lot of people. आज सोशल अब्यूज़ होता है, आज लोग बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, राइट. मैंने देखा है वो होते हुए, और ये फैक्ट है. IITs में सुसाइड करते हैं, IIT जैसे कॉलेज में जाके भी सुसाइड करते हैं बच्चे. सो मैं 10th में फेल हुआ. मैं सेंट पॉल स्कूल पे पढ़ता था गाज़ियाबाद में. हम लोग गाज़ियाबाद से, मैं और पुनीत गाज़ियाबाद से हैं. Okay. अंकित हम आगरा से हैं. अंकित हमें मिला कॉलेज में Okay. फर्स्ट I ईयर. need to ये स्टोरी बताओ 3 लड़कों की. हाँ, Three friends. तो मैं और पुनीत बचपन से दोस्त हैं, साथ से, KG नर्सरी से, और हम दोनों का बर्थडे भी एक ही दिन होता है. तो वो स्कूल में टॉफ़ी बांटता था, मैं भी बांटता था, और हम दोनों तो साथ में ही हैं. इट्स बीन अराउंड 35 years ना. हमने स्कूल्स भी शेयर करे हैं, हमने सब कुछ शेयर है ना, गाड़ियाँ भी शेयर करी हैं, बाइक्स भी शेयर करी हैं. सो दिस हाउ इट वाज. तो 8th क्लास में 10th क्लास में माई प्रिंसिपल डिड नॉट अलाउ मी टू गो टू 11th क्लास इन साइंस. सो मैंने बोला मुझे जाना ही नहीं, मैं कॉमर्स में चलाऊंगा. आई चेंज माई स्कूल. 11th क्लास में गया मैं, एंड आई गॉट फेल्ड इन 1 subject आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स विच वर देयर इन अकाउंट, की थी मैथ में शायद. और मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि ये तो री पेपर में बहुत मज़ा आता है, कुछ होता ही नहीं है, तू टेंशन मत ले, है ना तेरे. तो मेरे आए थे 29 पहले, और फिर आए 19 री में. Okay. और मुझे लगता था मेरे पापा मुझे पास करा देंगे. पापा नहीं पास करा पाए, वो किसी को नहीं जानते थे. पापा कुछ नहीं. तो मुझे उसने फेल की TC दे दी. और मेरा एक फ्रेंड था, उसके बराबर में घर में रहती थी एक स्कूल की चेयरमैन. तो मैंने उसको बोला अभी तुझे मेरा एडमिशन कराना पड़ेगा. सो माई फ्रेंड गॉट मी एडमिशन डन इन टू सम अदर स्कूल इन 12th. सो तो मैंने प्रिंसिपल को उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे पास की TC तो दे दो एटलीस्ट. तो उन्होंने बोला मिलेगी तो फेल की. उन्होंने मुझे फेल की TC दे दी. फिर मैं 12th में गया, तो चेयरमैन का रिकमेंडेशन था, और चेयरमैन के रिकमेंडेशन में कोई पूछता नहीं था. प्रिंसिपल ने बोला हाँ चेयरमैन का रिकमेंडेशन है, जाओ एडमिशन करा लो, फीस दे दो. एंड दिस हाउ आई गॉट एडमिशन इन 12th. फिर मेरे फादर ने बोला तू, मेरे सपने थे IIMS जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा. मैंने कैट का पेपर दिया, उसी साल वो कैट का पेपर आउट हो गया, राइट. तो पेपर कैंसिल हो गया. अब मैंने बोला अब मैं फोड़ दूंगा अगला पेपर जाके. अगले पेपर में और बुरी हालत मेरी. तो मैं पढ़ाई के लिए था ही नहीं. मुझे समझ में आया कि मैं तो मस्ती मारता था, यहाँ गए वहाँ गए, चलो यहाँ खाया पिया. और उसके बाद देन मेरे फादर ने बोला कहीं एडमिशन नहीं होगा तो तू एमिटी चला जा. मैंने एमिटी में इंश्योरेंस में एडमिशन करा दिया. आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दी एडमिशन. वहाँ कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं थे. आई होप मेरे डायरेक्टर ये सुनेंगे तो बोलेंगे कि यार तू इसलिए आया था क्या उस टाइम पे. एंड ही इज़ लाइक 85 नाउ, माई डायरेक्टर. एंड अभी भी वो मुझे मिले थे. एंड वेयर आई एम टुडे, ही इज़ सो प्राउड ऑफ मी कि बोलते हैं तू
I could not have imagined you running this company worth thousands crore today, right? And today, okay, after all this, I went to Amity में MBA इंश्योरेंस में मैंने कोर्स किया वहाँ पर 2 साल का। वो भी मेन स्ट्रीम नहीं, जो मिल mainstream गया, नहीं यार। हाँ, मैं जहाँ मिल गया एडमिशन, जहाँ मिल जाए एडमिशन। एडमिशन तो मिल गया, वो बहुत बड़ी बात थी। बस वही और मेरे फादर ने बोला कर ले, वरना तू कभी नहीं कर पाएगा कुछ भी ये एडमिशन। मैंने बोला ठीक है, एमिटी का ठप्पा ही फुल लगवा मस्ती लो। मारी मैंने, फुल मस्ती मारी एमिटी में। सो येस, आई मेट माई वाइफ देयर, तो शायद अचीवमेंट होती, मेरी वाइफ मिली मुझे वहाँ पर एमिटी में दिस। और उसके बाद देन आई गॉट अ जॉब सो इन रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस, विच आई वर्क फॉर 3 months, गुड 3 months। और उसके बाद मुझे समझ आ गया जॉब इज़ नॉट फॉर मी, मुझे करना ही नहीं है काम, क्योंकि वहाँ मेरी बॉस हंसती नहीं थी ना, वो गुड मॉर्निंग बोलती थी। मुझे लगता था कैसे सारी मशीन तरह काम कर रहे हैं लोग, है ना। एंड आई जस्ट लेफ्ट इट, और देन दे शिफ्टेड मी टू चंडीगढ़ फ्रॉम गुड़गांव। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर गुड़गांव, और उसके बाद फिर मैंने बोला यार दिस नॉट फॉर मी, और मैं छोड़ के भागा है वहाँ से। फिर पुनीत ऑल्सो गॉट अ जॉब समवेयर इन समथिंग, और पुनीत भी छोड़ के आ गया, और अंकित पहली बिजनेस कर रहा था। तो हम दोनों, एंड वी वर अंडर, आफ्टर व्हेन वी केम बैक वी वर अंडर डिप्रेशन फॉर मैनी मंथ्स, क्योंकि अब हमें ये समझ में नहीं आता हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इन लाइफ। और हम तो बहुत अपने आप को चैंपियन समझते थे दोनों, स्कूल में कॉलेज में, और एकदम थ्री इडियट्स वाली हाँ कहानी है हाँ आप लोग की। सच में मतलब एकदम फन कहाँ समझते थे अपने आप को, यार हमसे बेटर कोई है ही नहीं। और अब हम डिप्रेशन में है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है व्हाट आई मीन, बिकॉज एवरीबडी इज आस्किंग यार भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट, अब तू क्या करेगा, अब तू क्या करेगा, फैमिली फ्रेंड्स। और मैं सोचता था कभी, मतलब एक दिन मैं रोने लग गया बहुत ज़्यादा। और एक हमारी एक सिस्टर आई, कज़न, उसने गले मिलकर बोला कि भाई तू क्या करेगा। मैंने बोला तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँगा, तू तो कुछ नहीं करने वाली ना। दिस हाउ आई मीन वी यूज्ड टू क्राई, एंड देन वी यूज्ड टू ड्रिंक एंड क्राई आउट द क्लब के बाहर जाते थे। पैसे की भाई फैमिली वॉज ओके, दे वर वेल्दी, वी वर फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखा बहुत सारा हमने कभी। पुनीत ग्रैंडफादर ओन हाफ गाजियाबाद, तो उस टाइम में मर्सिडीज, तो वी वर कंफर्टेबली प्लेस्ड इन फाइनेंशियली, बट इमोशनली वी वर वेरी स्ट्रगलिंग दैट वेरी मोमेंट कि अब करना क्या है नेक्स्ट लाइफ में, मतलब कुछ था ही नहीं। दिस इज हाउ वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मिस्टर प्रमोद सक्सेना, who is our mentor right now, and he was the chairman for Oxygen Services. It's a very very big large organization, and उससे पहले he was country president of Motorola, he was board of director of Ruiyaz and stuff, so he was my father's first cousin। और मेरे फादर ने बोला तो उनके साथ जाके मिल ले, तो और वो हमारे शाइनिंग स्टार थे हमेशा से, क्योंकि एक ही शाइनिंग स्टार होता है जो बहुत बड़ा होता है फाइनेंशियली। And then we went to him. He saw I don't know what spark he probably must have seen us in three of us, right? कुछ तो था जहाँ उनको लगा कि बोला क्या, कई बार ऐसा होता है। मेरा क्वेश्चन इधर है कि कई बार दैट्स जनरली यू प्रोग्रेस इन लाइफ, यू नो, नहीं समझ में आ रहा होता तो कोई राह दिखाता है कि हाँ चलो इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। पर जाके व्हेन यू फाइनली फॉट कि हाँ ठीक है ये बंदा हमारी हेल्प करेगा, What did you guys go and say over there कि क्या करना है लाइफ में, या उन्होंने आप लोग में क्या देखा, कुछ तो किया होगा, any experience, that real life experience that you can tell from that meeting? So उसमें उस टाइम में कॉल सेंटर बहुत चलते थे, राइट, वेरी बजिंग बिजनेस था कॉल सेंटर, तो हमें भी कॉल सेंटर चलाना था। एंड बिकॉज ये जाके आपने बोला कि हमें कॉल सेंटर चलाना है, ये सोच के गए थे हम लोग कि कॉल सेंटर चलाना है, क्योंकि वो मोटोरोला के प्रेसिडेंट थे, वो सुनील भारती मित्तल के फ्रेंड थे, और मतलब टॉप शॉट मुकेश अंबानी टाइप, मतलब उस लेवल पे ही न्यू लॉट ऑफ पीपल एट द इंडस्ट्री एंड 1-to-1। तो मैं बोला हमें किसी तरह एयरटेल का कॉल सेंटर दिला दीजिए आप, है ना, हमने कॉल सेंटर चलाना है। ये 3 दोस्त बैठे सही में। अच्छा, और कौन से बिजनेस आइडिया सोचे थे आप लोग? बिजनेस आइडिया तो पहला बिजनेस आइडिया था हमें ब्रायन एडम्स को लेके आना था इंडिया में, जब हम कॉलेज में थे। उसके बाद तो हमने एक कंपनी लॉन्च करी कैप्रियानोस, और उसके बाद फिर हमें पुनीत की मदर बहुत टाकोस बहुत अच्छा बनाती थी, तो हमने बोला टाको का ट्रक लगाएंगे, है ना, कॉल सेंटर्स के बाद कॉलेज के टाइम पे। तो हमने एक ट्रक की मॉडिफिकेशन कराने की, तो पुनीत के फादर ने हमारी बोले रिक्शा चलाओगे, ठेल लगाओगे तुम लोग, तो मतलब उस लेवल के वर्ड्स हमें सुनना। एंड दैट वाज, मैंने यार ये कहे तो अंकल ठीक रहे हैं, अब हम ठेला चलाएंगे क्या दोनों मिलके? चंद्रा खानदान का बेटा ठेला चलाएगा, है ना, बोल तो वन ऑफ द वेल्दीस्ट फैमिली ऑफ गाजियाबाद ठेला चला रहा है, तो बच्चे ठेला चला रहे हैं। तो ये आइडिया तो बहुत आते थे हमको कि अब ये करते हैं, अब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, मतलब, और ड्रीमर्स थे हमने, शायद शुरू से ही ड्रीम बहुत बड़े बड़े रखते थे कि ब्रायन एडम्स को लाएंगे इंडिया में। उस टाइम में ब्रायन एडम्स फेमस, आज भी बहुत इट्स लेजेंडरी सिंगर। तो ऐसे हमने कैप्रियानोस पहले कंपनी बनाई, फिर टाको का एक कुछ बनाया,
फिर उसके बाद पुनीत ने एक कंपनी बनाई, के कनेक्टर, लिंक्डइन की तरह एक कंपनी बनाई उसने अपने कॉलेज में विद हिज जूनियर्स। उसके बाद फिर वो उस टाइम पे फेल हो गई, क्योंकि बिकॉज आई थिंक इट वाज अहेड ऑफ टाइम दैट टाइम, राइट, ही कुड नॉट गेट द फंडिंग एंड स्टफ। सो उसके बाद फिर हम तीनों तो घूम ही रहे थे साथ में। अंकित उस टाइम रियल एस्टेट का बिजनेस करता था गुड़गांव में, एंड ही मिंटेड मनी, और वो एक दिन सिविक ले आया, होंडा सिविक, 25 ईयर्स बिफोर। हमारा दिमाग घूमा, यार ये तो सिविक ले आया, हम भी यही करेंगे जो कर रहा है। Okay. This is how we started. So first business after that Puneet and me opened an office in Connaught Place, बाराखंबा रोड पे, फॉर बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, एक यूएस की कंपनी है, उसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। Okay. फिर हमारा एक और फ्रेंड था जो कि आर्किटेक्ट था, आईआईटी रुड़की से। वो एक बहुत बड़ा डेवलपर बन गया, वो भी बहुत पैसे कमाता था। हमने बोला यार कुछ तो करेंगे इसमें, तो हमने कॉर्पोरेट लीजिंग का एक ऑफिस बना लिया पहला, और एक बिजनेस ऑब्जेक्ट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना लिया। और हम दोनों लंच लेके जाते, अखबार पढ़ते पूरे दिन। एक कस्टमर नहीं आता हमारे पास, एक हमने असिस्टेंट रख ली बाहर एडमिन में, और वो हमारे को चाय वाय देती रहती। हम दोनों बैठ रहे थे खाली, और हम सोचते हम कस्टमर कब आएगा, कस्टमर आएगा कब। एंड इट वॉज ऑन बाराखंबा रोड, इतना महंगा ऑफिस उसके फादर ने दिला दिया, हमारे पास तो पैसे थे नहीं। और हम 1-2 महीने, पता नहीं कितने महीने, और हमारी एक और फ्रेंड पावर ग्रिड में काम करती, वो रोज आ जाती, हम शाम को समोसे खाते और घर आ जाते। ये हम कर रहे थे कई महीने तक, और वी वर एब्सोल्युटली इन डिप्रेशन कि अब यार ये हो क्या नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा। और थोड़े बहुत पैसे जमा थे, वो हम कहीं चले गए, फूका है। तो ऐसे करते 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 तब हम मिस्टर प्रमोद सक्सेना से मिले फर्स्ट टाइम। तो मेरे फादर को किसी ने बोला कि आप बच्चों को उनसे मिलवाओ, राइट, ही मस्ट गिव यू सम आइडिया। दिस हाउ वी मेट हिम इन हिज हाउस लाइक 18 ईयर्स बिफोर। और उन्होंने बोला कि अच्छा तुम कॉल सेंटर चलाना चाहते हो। हाँ। तो वो ऑक्सीजन का उस टाइम पे कॉल सेंटर सेटअप कर रहे थे। उन्होंने बोला तुम कॉल सेंटर पहले ऑक्सीजन का चलाओ, तीनों मिलके, कैपिटल लगाओगे। हमने बोला हाँ थोड़ा बहुत जो भी है लगा देंगे। तो मेरे फादर ने कुछ पैसे दिए मुझे, 8 लाख रुपए शायद कुछ उस टाइम पे। मेरे बाबा जी की कोई प्रॉपर्टी बिकवा दी मैंने, उससे 8 लाख रुपए लिए, और एक गाड़ी दे दी रेंट। बोला ये मेरे पास, तू ये रख ले। एंड मुझे आज भी याद है, मैंने अभी तक पूरे पैसे नहीं दिए, मैं दे ही नहीं पाया था उनको पूरे पैसे, फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट विच आई हैड टू डू फ्रॉम माई थिंग, बिकॉज आई लोन माई कार। उसमें से जो 2-3 लाख रुपए मिले वो मैंने डाल दी कंपनी में। दिस हाउ वी स्टार्टेड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट कंपनी वाज BQYD सर्विसेज। तो जो मेन कंपनी जो चली कई साल तक, 6-7 साल तक, विद ऑक्सीजन, प्रमोद सर के साथ हमने उनके साथ शुरू करा। और एंड वी टुक दैट बिजनेस टू अराउंड 700-800 पीपल इन 7-8 ईयर्स, बट ऑलवेज ब्रोक, बहुत बुरी हालत थी मतलब। एंड आफ्टर 8-9 ईयर्स ऑफ बिजनेस हमें लगा हम डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो हमने रियल एस्टेट बिजनेस भी शुरू कर दिया, हमने ब्रोकिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, हम फ्लैट बेचने लगे, सुपरटेक के, DLF के, सबके कॉल सेंटर के साथ। तो मैंने पुनीत अंकित को बोला तुम दोनों वो चलाओ, मैं ही चलाता हूँ। ओके। एंड दिस हाउ वी थॉट दैट। तो हमें हमेशा ऐसा लगता था कि जहाँ भी कोई, यहाँ इसके पैसे बन रहे हैं, हम वही करने लग जाते थे, है ना। बट बिकॉज वी वर सो डेस्परेट प्रॉब्ली कि अब पैसे बनाने यार, पैसे कब बनेंगे, मतलब हम इतना, अभी तो वी आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, बैकअप है, बैकिंग है। अभी सिचुएशन बदल गई। अभी मेरे फादर की फैक्ट्री बंद हो गई, उसके फादर भी कुछ बहुत अच्छा, मतलब इट वाज नॉट अ ग्रेट शेप, राइट। देन नाउ इट वाज आवर टाइम टू गेट, आई मीन गिव सपोर्ट टू फैमिली फाइनेंशियली। वी ऑल 3 वर मैरिड, आई हैड अ डॉटर, उन दोनों के भी एक बच्चे थे। तो अभी ऐसे इस सिचुएशन में आ गए हम। अब हम बैचलर से अब फैमिली की लाइफ के साथ, विद फैमिली फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ पेरेंट्स, राइट। नाउ वी हैव टू सपोर्ट देम। और पैसे तो बनते नहीं है, हमारी सैलरी तो आती नहीं है, कि कब कहीं हम तो उधार ले लेके सैलरी बांटते हैं लोगों को। और आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ किसने बोला यार तुम टैक्स नहीं दे पाए, तुम ये नहीं कर पाए, तुम वो नहीं कर पाए। हम तो चोरी तो करते नहीं हम लोग, और पैसे तो लॉस में चले जाते हैं, हमें खुद समझ नहीं आता पैसे कहाँ जाते हैं, राइट। दिस हाउ वी आफ्टर 10 ईयर्स वी वर एब्सोल्युटली ब्रोक। हमने सोचा बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं। और 700-800 लोगों की टीम भी है। हाँ, 200-300 लोगों को निकाला, हाथ पैर जोड़े, पैसे नहीं दे पा रहे थे, वेंडर्स को कुछ करा, एयरटेल को कुछ करा, बहुत सारे लोग थे। आई मीन वेरी सेटल लॉट ऑफ थिंग। एंड मुझे आज भी याद है कि कुछ 200 लोग हमारा ऑफिस पूरा तोड़ने को रेडी थे एक दिन। देवर आफ्टर, क्योंकि हम उनसे शायद उस टाइम पे सैलरी नहीं दे पाए थे, तो देवर ट्राइंग टू स्टील ऑल द कंप्यूटर्स, देवर ट्राइंग टू ब्रेक द ग्लासेस, एंड वी हैव हैंडल दैट सिचुएशन ऑन ग्राउंड इन द फ्रंट, है ना। तो कि ये लोगों हाथ पैर जोड़े कि यार हम दे देंगे, जो लॉस हुआ, बट वी विल गिव इट टू यू, डोंट वरी। सो वी सेटल दीज गाइज। सो हमने वो लेवल के पैनिक्स भी देखे हैं लाइफ में और बिजनेस में। तो ये तो बहुत छोटे कि कस्टमर का एक छोटा पैनिक तो बहुत चाहिए। कभी ये क्या पैनिक का लेवल है, कोई ये लेवल ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कई बार ये लेवल तुम बात भी मत करा करो। कोई कस्टमर थोड़ा चीख रहा है तुम उससे डर जाते हो। यहाँ तो मेरा ऑफिस टूट रहा है मेरे सामने। टूटते हमने बचाया वो ऑफिस। वेरी प्रैक्टिकल इंसाइट जो मुझे यहाँ पर पता करने की, लाइक बिकॉज ऐसी जगहों पे ना बहुत लोग टूट जाते हैं।
और ड्रास्टिक स्टेप्स लेते हैं Absolutely. एंड दैट्स लिटरली द टेस्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव साइड पे तो हम Correct. विल प्रोग्रेस टू दैट कॉन्वर्सेशन दैट्स योर सेकंड हाफ Yeah. ऑफ योर जर्नी Yeah. बट जनरली आई थिंक सो दैट इज लिटरली टेस्टिंग योर ग्रिट एज एन एंटरप्रेन्योर Absolutely. Yeah. बट व्हाट आर थिंग्स दैट यू यूज्ड टू डू एट दैट टाइम कि कितनी दो डिफरेंट लाइव्स आप ले रहे हो घर ऑफिस पे जा रहे हो वहां पर 200 लोग आपके सामने लाइक आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट सीन वो ऑफिस में तुम वो सब कुछ हैंडल कर रहे हो एंड देन यू हैव टू कम बैक टू अ फैमिली एंड देन स्टिल कीप योर काम नो how do you handle situations like this as a as an entrepreneur and then coming back to a family also who demands you as a person? I had a bad time that time. No, I was telling you, BP की problem और ये abusive उस time पे उस time ही. हाँ. This was a result first of all 10 years. Yeah, first 10 years. तो first phase है life का. first अभी phase. second phase के बारे में next बताऊंगा. नहीं ये है ना? तो important first, aspect of है. course, first phase में बहुत चीखते चलाते थे. I mean, we used to had fights at home and no time, absolutely no time and no money. राइट पैसे भी नहीं थे क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे. सबसे तो ज्यादा खलता है. और माई वाइफ वॉज अ टॉपर इन कॉलेज. राइट, मैं नीचे टॉपर, वो ऊपर से टॉपर थी. एंड शी वॉज अ स्कॉलर, उसको स्कॉलरशिप मिलता था. और नाउ शी इज अ मदर एंड शी इज नॉट डूइंग अ जॉब. अब उसको लगता है यार, सी देयर एस्पिरेशन ऑफ मेल फीमेल बोथ. एंड वी हैड लॉट ऑफ स्ट्रगल दैट टाइम. एक फ़ोन के ऊपर लड़ाई हो जाती थी कि उसको फ़ोन खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है फ़ोन खरीदने के. एंड देयर वर लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम इन दी स्टार्टिंग. तो यही होता था, शादी करी क्यों है. मतलब अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था कॉलेज में, तो सब कुछ हंकी डोरी था. अभी यहाँ क्या हो गया एकदम से ऐसा, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल हो गया, लाइफ में स्ट्रगल हो गया, टाइम तो है ही नहीं, है ना. और पैसे भी नहीं है. एंड देन शी स्टार्टेड हर ओन बुटीक. माई फादर इन लॉ वॉज हैड देयर ओन बुटीक्स इन लखनऊ. बहुत अच्छा काम था. तो हमें लगता था इसमें पैसे बनेंगे, तो उसने भी बुटीक खोली. ना वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ. वो ट्यूसडे को छुट्टी रखती है, मैं संडे को छुट्टी रखता हूँ. कस्टमर आता नहीं है ना, या कस्टमर आता है तो उतना बनता नहीं है पैसा. टेलर भाग जाता है, तो उसके डिफरेंट चैलेंजेस, तो उसको सॉर्ट आउट करता था. लेकिन हाँ, हम 3-4 साल बहुत मज़े में रहे विद माई फ्रेंड्स. सो आफ्टर मैरिज, मी, माई वाइफ एंड 2 of our bachelor friends used to live together like a college in hostel. And we had amazing time, 3 years. And everybody was struggling, right? We 4 were struggling. I was struggling, my wife was struggling, they both were also struggling. तो हम चारों, और फिर वो हम चारों एक दिन एंटरप्रेन्योर बन गए. हम वो बिजनेस खोल चुकी थी जॉब से, मैं चलाता ही था बिजनेस. मेरे दोनों दोस्तों को भी जो चढ़ा वो बोलते हम भी बिजनेस करेंगे. दी अदर गाय वॉज अ वेरी गुड, ही वॉज इन बॉम्बे अर्निंग सो मच वेल इन हिज जॉब इन सम, आई थिंक टाटा AIG समवेयर, एंड वेरी ब्राइट. हिज नेम इज अनिमेश. तो वो भी गुड़गांव आ गया. उसको भी जो चढ़ा उसने उसको भी बुला लिया और उसको बिजनेस में डाल लिया. नहीं, वो आया था पहले ही खुद ही जॉब के लिए. उसके बाद जब मेरे से 2-3 साल रहा तो उसको लगा मुझे भी बिजनेस करना है. हमने उसको teleastro.com एक वेबसाइट खुलवा दी. बताते थे आप लोगों को कि ऐसे ही स्ट्रगल की. That's what I could sense अभी till now कि सब कुछ. अब मैं दूसरी कहानी बताता हूँ. कुछ काम नहीं चल रहा है, मतलब स्ट्रेस पूरा है, 200 लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पैसे देने के लाले पड़ रहे हैं और कमा भी नहीं रहा हूँ मैं, बट फिर भी बिजनेस करेंगे. किसी और के लिए काम नहीं करेंगे. जो पैसे दे रहा है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, वो नहीं करेंगे. स्ट्रेस लेके कुछ और करेंगे. तो वो उसने टेलीएस्ट्रो करके उसने एस्ट्रोलॉजी की बिजनेस. हमने बोला यार पत्थर में बहुत पैसे बनते, वी कैन सेल लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोडक्ट. तो हमने उसको एक एस्ट्रोलॉजी की कंपनी खुलवा दी. तो हम सारे पार्टनर्स और हम चारों ने एक कंपनी खोली टेलीएस्ट्रो. वो मोबाइल फ़ोन पे एस्ट्रोलॉजी करते थे और पंडित बैठे रहते थे, 10-11 पंडित. वो आज भी वो बिजनेस करता है एंड ही इज डूइंग वेल नाउ. तो हमने एस्ट्रोलॉजी की बिजनेस खोल दिया कि अब यार हम पत्थर और वो ये बेचेंगे, मालाएं लोगों को. That is again one of your 11 businesses. Yeah, one of our 11 businesses. एक कंपनी खोली कॉल टू पे, फ़ोन करके टेली शॉपिंग की एक कंपनी. देन आई डिड मल्टी लेवल मार्केटिंग, आई डिड कंस्ट्रक्शन, बहुत कुछ. मतलब पता नहीं, ये एंडलेस स्टोरी टाइप है. मतलब 11-12 बिजनेस होंगे टोटल, 10-11 ऐसा कुछ नंबर है. और उसके बाद ये बिजनेस हमें करना ही नहीं था स्कूटर का, बिकॉज बिल्कुल मैं तो हार मान चुका था कि यार अभी क्या, मतलब अभी पैसे कहाँ से लाएंगे इतने. मैं तो पहली इतनी बुरी हालत है. और इतने जगह इन्वेस्ट कर दिया है जहाँ से कुछ आया नहीं. इन्वेस्ट नहीं, डेट. इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो डेट है जो कि हमें बैंक और गवर्नमेंट को देना है ना. और चार्टेड अकाउंटेंट हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम ये ऐसे करते हो यार, ये कैसे करोगे तुम लोग, मतलब क्या करोगे. और हमें लगा यार हम करेंगे क्या पता नहीं, अब देखेंगे. अभी बैंक्रप्सी फाइल करेंगे तो बैंक्रप्सी रूल्स इंडिया में बहुत अच्छे नहीं है, राइट. और कभी कभी मुझे लगता है शायद हम इस पॉडकास्ट से गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचा था कि यार एंटरप्रेन्योर हमेशा बेईमान नहीं होता, राइट. हम तो स्ट्रगल ही कर रहे थे ना. हमने चुराया नहीं पैसा गवर्नमेंट का कुछ भी, ना ही किसी कस्टमर का चुराया, ना ही किसी वी वर नॉट थीव्स. बट स्टिल वाई, बिकॉज ऑफ द लार्जर प्रॉब्ली चैलेंजेस ऑन
tax evasions and stuff, government treat you as a thief sometime, right? तो वो हम लोगों ने we were struggling there, तो हमने बोला bankruptcy फाइल करेंगे तो इतने का तो TDS ही है, so rather than चलो start करते दोबारा से, then this idea came to my mind कि यार ऐसा करते हैं, let's just start aggregation of the workspaces. For example, now you've got 100 workstations, I will now Simran wants 10 workstations, I become a mediator and there's some company who can lend this 10 workstations out, and this was my idea of Scooter. One question over here. अब चलो ये बड़ी स्पेस मिल तो गई, अब ये बड़ी स्पेस को चलाने के लिए क्लाइंट भी वैसा सही चाहिए होता है. हाँ, करेक्ट. टू एन एक्सटेंट आई थिंक सो स्पेस मैनेज करना फिर भी पीपल सी दैट कि जिगरा है लड़कों में. करेक्ट. Sometimes I think so people who investors, if they want to invest in you, they see your intent. Yeah. At least that's what I have seen. Correct. इन्वेस्टमेंट मांगना आई थिंक सो और मैनेज करना ईजी है. Yeah. क्योंकि पैसे अगर है तो दे देंगे, उनको है कि हाँ भाई यू कैन नॉट मूव आउट. बट कई बार वो निकालना, क्लाइंट लेना ज़्यादा टफ होता है. क्लाइंट ये नहीं देखे, क्लाइंट तुम्हारा जिगरा नहीं देखता है, कुछ देखते हैं, बट क्लाइंट देखेंगे विल यू, एंड स्पेशली अ क्लाइंट लाइक दिस हु विल वांट टू कम इन अ प्लेस लाइक साइबर सिटी. वो देखेगा हाँ जी बताओ किया गया है तुमको. डिड यू हैव दैट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो एट दैट टाइम? No portfolio. No portfolio, no balance sheet. But client कैसे आने? How did you get that? Because एक तरफ इन्वेस्टमेंट है, चलो भाई इन्वेस्टमेंट मिल गया, एक मैनिफेस्टेशन टिक हो गया, अब इसको करने के लिए काम चाहिए. Correct. How did you? What were tricks that you played over there कि अब काम लेके आते हैं उस लेवल का? वो कैसा हुआ आपके लिए? तो पहले जगह जब मिली तो 2-3 कस्टमर कुछ रुक गए हमारे, क्योंकि शायद उनको साइबर सिटी में रहना था, उसी बिल्डिंग में रहना था, तो प्रॉब्ली नॉट बाय चॉइस बट बाय फोर्स, है ना. 2-3 रुक गए जिससे उनको रहना ही उसी बिल्डिंग. देखिए जब आप फॉर एग्जांपल नाउ यू वांट टू स्टे इन दिस बिल्डिंग, okay, राइट, how does it matter even if your landlord changes, right? Okay. You have to stay here. That is your choice to stay in this building, on that's this floor. That's how you were blessed. We were blessed. Okay. तो वो कुछ 3-4 कस्टमर हमको वहाँ मिल गए जिनको उसी बिल्डिंग में, उसी ऑफिस में रहना था, जिसको नहीं छोड़ना था अपना ऑफिस. That's God with you. God मास्टर प्लान, ऑफ कोर्स, है ना. गॉड का मास्टर प्लान होता है हमेशा. तो उसके बाद फिर दूसरा कस्टमर, जो बड़ा कस्टमर हमें मिला, उसने, एंड आई स्टिल रिमेंबर अंकित, जैसे मैं आपको बहुत, तो पुनीत अंकित भी ऐसे ही है मेरी तरह, और इसीलिए हम लोग शायद साथ में चल पाते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी फायर्ड अप, है ना. बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम लोग, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे लाइफ में कुछ, तो कर देंगे कुछ तो. तो अंकित वॉज डीलिंग विद द इकोनॉमिस्ट, दैट वॉज आवर फर्स्ट बिग कस्टमर, एंड आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर हु टुक द कॉल फ्रॉम लंडन, and they are the 180 some very old company, business magazine, and headquartered in London. उसने शायद अंकित को ये बोला कि आई रियली, एंड कंपटीशन में था कौन था, DLF एंड वाटिका फॉर दैट कस्टमर, बिकॉज दे वर सिटिंग इन वाटिका बिजनेस सेंटर इन MG रोड, और उनको ऑफिस चेंज करना था. तो उन्होंने लास्ट में यही बोला कि वाई आई चोज यू, फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ अ पैशन, अंकित्स पैशन ऑन दी, एंड द रिस्पॉन्सेज, राइट रिस्पॉन्स, minutes, hourly response. And DLF were functioning like a normal corporate. Vatika was like a normal corporate. And we were, हमारी तो जान बचानी थी, मतलब we were survival issue थे ये तो हम तो छोड़ ही नहीं सकते थे, राइट. और DLF और वाटिका के लिए, क्योंकि इतने बड़े नाम हैं, तो उनके लिए एक नॉर्मल कस्टमर था. आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, मतलब दे वर ऑल्सो, बट इट वॉज नॉट ईजी टू, वो बिग डैडीज के मुंह से निकालना कोई आसान काम नहीं होता है. तो अंकित बहुत पैशनेट था, उसको तो वो हर घंटे में रिस्पॉन्स कर रहा था, मतलब ही वॉज सिटिंग लाइक 24 आवर्स ओनली ऑन द प्रपोजल. वो क्या मांग रहे हैं, उनको क्या चाहिए. अब DLF में तो अप्रूवल सिस्टम है, 1 2 3 4 5, वो जाएगा, वो छुट्टी पे है कोई है, दे फॉलो प्रोटोकॉल्स. हमारे पास तो कोई प्रोटोकॉल नहीं, हम तो खुद ही बैठे कंप्यूटर पे प्रपोजल बनाने के लिए. तुम बताओ क्या चाहिए, आपको बताओ क्या चाहिए. At your service. Yeah, so this is how we got our first customer. कस्टमर मिलने के बाद बहुत स्ट्रगल रहा. उन्होंने डिपॉजिट दे दिया, राइट. वी ब्रोक द एंटायर ओल्ड ऑफिस. उन्होंने बोला जरा अपना बैलेंस शीट दिखाना. बैलेंस शीट उन्होंने नेगेटिव है, कुछ है नहीं, कैश फ्लो, फंड फ्लो. तो वी जस्ट मैनेज, हमने फिर बैंक के हाथ पर जोड़े, यार इनको पैसे दे दो कि हम इनका बना देंगे. एंड दिस इज हाउ देन वी, तो फंडिंग लेके आए, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया, फिर उनको वहाँ पर जाके अश्योरेंस दिया कि हम आपका बना देंगे, डोंट वरी, हम भागेंगे नहीं. तो ये जो बॉडी लैंग्वेज की एश्योरेंस है ना, कि हम भागेंगे नहीं, हम कुछ भी करेंगे, हम भागेंगे नहीं, तो वो बहुत कंफर्ट करती है कई बार इंडिविजुअल्स को. आई अंडरस्टैंड कंपनीज हैं, बट इंडिविजुअल वो इंटेंट देखते हैं आपकी. तो पहला जो हमारा स्कूटर का कस्टमर था, वो एक कॉल सेंटर कंपनी थी जिसको शिफ्ट करना था हमारे यहाँ, एंड वी हैड नो क्लू. मतलब हमारा एक सर्वर रूम हुआ करता था उद्योग विहार में, और सर्वर रूम ऐसा था कि अगर पैर लग जाए तो इंटरनेट बंद हो जाता था, है ना. और हाल तो AC बंद हो जाता था, इतना जुगाड़ था.
उस सर्वर रूम, और वो बहुत स्ट्रक्चर्ड कंपनी से आया था. एंड आई स्टिल रिमेंबर माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट विद फर्स्ट बेबी. मैं 24 घंटे ऑफिस में बैठ रहता था, और वो और उसकी कॉल कट रही हैं, उसका रेवेन्यू लॉस हो रहा है कॉल सेंटर का, और एंड ही वॉज अब्यूजिंग. और वो और उस दिन ऐसे दिन भी थे, वो आगे सीढ़ी से भागता आता था, तो मैं पीछे सीढ़ी से भागता था कि इसको फेस लगा करना पड़ जाए. एंड आई लिट और कभी कभी मैंने ऐसे सिचुएशन में देखी है कि आज पावर डाउन हो गई, अगले दिन इंटरनेट डाउन हो गया, तीसरे दिन जनरेटर डाउन हो गया, वो कुछ हो गया, आईटी डाउन हो गया, छठे दिन ये डाउन हो गया. मतलब रोज कुछ ना कुछ अलग डाउन हो रहा है. एंड आई यूज्ड टू क्राई कि यार ये हो क्या रहा है. और मुझे किसने बोला, तू जाके बात कर अपने सर्वर रूम में जाके ना, सर्वर से बोल भाई आज से वन डाउन हो गया. यहाँ पर भी हाथ पैर जोड़ो. तो मैंने लिटरली अपने सर्वर रूम में सब सर्वर से जाके बात करी, मशीनों से बात करी, यूपीएस को हाथ जोड़े, भाई क्या हो गया, मैं ख्याल रखूंगा, मैं एएमसी कराऊँ, तू टेंशन मत ले, है ना. आई विल एंश्योर दैट आई टेक केयर ऑफ यू, प्लीज टेक केयर ऑफ द बिजनेस. तो दिस इज हाउ आई हैव बीन डीलिंग विद लॉट ऑफ सिचुएशन लाइक. फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, व्हेन आई वाज स्टेइंग फॉर 24 आवर्स, दैट then out of a sudden these two guys come to my, finally they caught me in one of these stairs. Okay. और उन्होंने बोला कि अनुज, वी प्रॉमिस यू दैट विल नॉट गो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, यू शुड बी देयर एट होम, बट यू आर देयर इन ऑफिस फॉर 24 आवर्स, जस्ट एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग गोज वेल. तो इंटेंट प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है स्किल प्रॉब्लम है. मैंने यार स्किल प्रॉब्लम है, इंटेंट प्रॉब्लम नहीं है हमारी, है ना. हमें आपको सपोर्ट करना है, एंड वी हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी. फिर से इतना लॉस के बाद भी हमने फिर से, क्योंकि हमने रात में कॉल सेंटर चलाना था. तो इंटेंट देखते हैं लोग हमेशा ना, आपके अंदर फायर देखते हैं, आपकी जेन्युइननेस आंखों में नजर आ जाती है लोगों को. दिस इज, हमें तो आज तक बिजनेस ऐसे ही मिला है, जेन्युइननेस देख के, कि हम रियली आपको एक ग्रेट प्रोडक्ट देने की इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि मार्केट का एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप. इंटेग्रिटी इज अ वेरी बिग गैप इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. टाइमलाइन इज अ वेरी बिग गैप इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. ग्रेट प्रोडक्ट इज अ वेरी बिग गैप इन द इंडस्ट्री, विच वी रियलाइज दैट ये अगर हम ठीक करेंगे तो यार धंधा चल पड़ेगा. और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी आती है हर रोज की, ये हो रहा है प्रॉब्लम, तो ऐसे. तो दिस हाउ वी स्टार्टेड. तो पहला कस्टमर हमें केवल हमारे पैशन पे मिला, और बहुत सारे कस्टमर हमारे केवल पैशन में मिले हमको. मतलब ये, और ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं दुनिया के, फॉर्च्यून कंपनी, क्योंकि उसमें ब्रांड में तो लोग बैठे होते हैं ना, लोग हमारी आंखें देख रहे होते हैं उन मीटिंग्स में, हमारी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो पता चल जाता है उस टाइम. And at this level you cannot fake it. No, yeah. No, people can fake it, of course. There are a lot of competitors who absolutely fake it. You can't say, madam. You can fake it. Fakeness भी एक बहुत बड़ी आर्ट है ना. और ऐसा फेक करेंगे आपको पता नहीं चलेगा फेक रहा है. और कई बार हमारे जैसे कई बार कॉम्पिटिशन में बहुत एरोगेंट लोग भी हैं. हमारे को इसलिए भी बिजनेस मिलता है, तो आप लोग बहुत हम्बल हो, है ना, फ़ोन पे रीचेबल हो, बात कर सकते हैं, आप आके खड़े हो जाते हो, राइट. एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कस्टमर की, कि ओनर्स भाग जाते हैं, है ना, मिलते नहीं है. तो दिस हाउ वी गॉट आवर बिगेस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स लाइक दिस. उसके बाद फिर थोड़ा ऑफ कोर्स जब आप डिलीवर करते हो तो वन कस्टमर रेफर यू टू अनदर, देन पोर्टफोलियो कम्स इन प्लेस, राइट. नाउ वी गॉट अ बिग पोर्टफोलियो वेयर वी डोंट इवन गो फॉर लॉट ऑफ सेल्स नाउ. अब वो स्टेज आया है.